A very warm welcome to you all students. Today we are going to discuss a physiological mechanism of human body, and that is respiration. Okay. So first of all, the definition of respiration. What is respiration? Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cell. Now, if you all remember, we have studied what is metabolism, what is catabolic reaction, and what is anabolic reaction, isn't it? So, what is metabolism? Metabolism is sum total of all the activities or all the reactions which are taking place inside the body. Sum total of all the reactions taking place inside the body is termed as metabolism, isn't it? Now, we had studied that there are two types of metabolic reactions, anabolic and catabolic, isn't it? Now, anabolic reactions are always constructive in the sense that something is formed. Okay. So you can say like in chemistry also you must have studied combination reaction and decomposition reaction, isn't it? The combination reaction means something new is formed. So whenever there is a reaction in which something new is formed, that reaction is said to be anabolic reaction. Okay? In a living cell, if something is formed, then that type of reaction is anabolic. For example, photosynthesis. ठीक है, we have studied photosynthesis कि green plants prepare their food with the help of sunlight, chlorophyll, ठीक है, to produce glucose, that is the food, starch, isn't it? तो उसमें क्या हो रहा है कि starch या glucose का formation हो रहा है, so that process is constructive, useful, and also it is एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है. हमको कुछ बनाना है नया, तो कुछ भी नया काम करते हैं हम या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है. तो इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी यूटिलाइजिंग रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है. और ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि कुछ डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो, ठीक है, कोई एक कंपाउंड है या कोई एक सब्सटेंस है जो ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंसेस बना रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में ये डिफरेंस हो गया. प्लस कैटाबॉलिक में क्या हो रहा है कि हम किसी चीज़ को तोड़ के कुछ सिंपल सब्सटेंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज़ होगी. इसका मतलब कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक के एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था? एनर्जी भी यूज़ हो रही थी और फूड का प्रिपरेशन हो रहा था. रेस्पिरेशन इज़ जस्ट ऑपोजिट. इसमें क्या हो रहा है कि जो फूड में एनर्जी स्टोर्ड थी उसको ब्रेक करना है और उसके अंदर से एटीपी को यानी कि एनर्जी को रिलीज़ करना है. तो वो प्रोसेस जिसमें फूड को हम या बॉडी, नॉट हम बट बॉडी क्या कर रही है? बर्न कर रही है और उसको उसमें से एनर्जी रिलीज़ आउट कर रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कहते हैं रेस्पिरेशन. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. Breathing is merely exchange of gases, that is taking in the oxygen and giving out carbon dioxide. Only this is a physical mechanism जिसमें कि O2 अंदर लेते हैं and CO2 बाहर. ठीक है, so it is a very simple process. But respiration में क्या हो रहा है कि it is a series of chemical reactions जिसमें कि फूड को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना होता है. ग्लूकोज को क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है ताकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो. अच्छा, अब एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होता है? एटीपी. ठीक है, कि एनर्जी जो है वो सेल के कंटेक्स्ट में उसको हम दूसरा नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी. दैट इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट.
ठीक है, द केमिकल वर्ड फॉर एनर्जी इन बायोलॉजी और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग system is what? It is adenosine triphosphate or ATP. Okay, now so the energy which is released during respiration is used to make ATP molecules. यानी कि जो एनर्जी फूड हम क्यों खाते हैं? Why do we take in food? Obviously to attain energy, isn't it? To gain energy to carry out our work, isn't it? तो वो एनर्जी जो फूड में स्टोर थी उसको रेस्पिरेशन के थ्रू किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ताकि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दैट द फूड इज बर्न इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. उसके बाद जब एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है रेस्पिरेशन से, जब सेल के पास एटीपी स्टोर्ड रहती है, फिर कभी भी एनर्जी का जब भी यूज़ होगा, ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट होगी, तो एटीपी क्या करता है कि उसका ब्रेक डाउन होगा और उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी और एटीपी वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में. ठीक है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है, तो एक्चुअली ये एडिनोसाइन क्या है? ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड एडिनोसाइन. ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल एडिनोसाइन जिसमें अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो तो हम उसको ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं, और अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाईफॉस्फेट. ठीक है, तो एटीपी का मतलब क्या है कि एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स लगे, और एडीपी का मतलब क्या है कि उसमें एडिनोसाइन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट लगा हुआ होगा. एनीवेज, तो हमारा मेन यहाँ पे मोटो क्या है कि एटीपी क्या है? इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में फूड जो है वो ब्रेक करता है टू रिलीज एटीपी. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Now there are 2 main types of respiration. They are aerobic and anaerobic respiration. Aerobic word में aero जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है? air. It is related to air. And air is related to oxygen. ठीक, anaerobic का मतलब n लगा है, means n air का मतलब क्या हो गया कि उसमें air नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है. That is aerobic में in the presence of oxygen and anaerobic में in the absence of oxygen. Okay, so let's see these 2 types of respiration. Number 1 is the aerobic respiration and number 2 is anaerobic. So aerobic respiration obviously takes place in the presence of oxygen. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा कि वो कब होगा? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो. It produces more energy and the end products are carbon dioxide, water and energy. It takes place in most organisms. So what is the characteristic of aerobic respiration? पहला कि वो takes place in the presence of oxygen. सेकेंड क्या है कि इसमें more energy produce होती है as compared to anaerobic respiration. और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और ये टाइप का रेस्पिरेशन जो है ये ऑलमोस्ट हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन? हमें पता है कि फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, द फूड विच वी इनटेक, सो एक्चुअली इन दैट फूड द एनर्जी जो है क्या है, किस फॉर्म में है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जो फूड है हमारा, जो प्रोडक्ट है, तो अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में है. ठीक है, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर. ठीक है, ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, दैट इज़ इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल होता है. ग्लूकोज क्या है? इट इज़ अ शुगर, इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल. कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन होता है वैसे कार्बोहाइड्रेट होता है. कार्बोहाइड्रेट में जितने भी शुगर्स होते हैं वो सारे आते हैं. ठीक है, यू विल बी स्टडिंग अबाउट इट इन लेटर क्लासेस. ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हमारा फूड है. ठीक,
अब बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रोसेस जो हो रहा है रेस्पिरेशन को, उसके बाद उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और एनर्जी में ब्रेकअप नहीं होता है, ठीक है। ग्लूकोज का हमने पढ़ा है क्या, एरोबिक टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है, it is not one step process, but it is actually it occurs in steps. सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो एक एसिड में ब्रेक करता है और उस एसिड को हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, या अगर आयनिक फॉर्म में बोले तो पायरुवेट, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, किस हिस्से में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक कर रहा है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्लूकोज जो है वो अभी हाफ ब्रेक हो रहा है, किसमें, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में, ठीक है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी पहला स्टेप यही होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में ब्रेक करता है इन द साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, इट ब्रेक्स ब्रेकिंग इनटू पायरुवेट इन बोथ द केसेस, एरोबिक ऑल्सो एंड इन एनएरोबिक ऑल्सो। डिफरेंस कहाँ आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, अच्छा सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सबको पता है, साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। बात समझ में आई। अब जो है वो पायरुविक एसिड चेक करता है कि उस सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस सेल में तो पायरुविक एसिड अब जो बना है साइटोप्लाज्म में वो तुरंत कहाँ एंट्री मारेगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल में तो क्या होगा कि वो पायरुवेट एसिड कहाँ फॉलो करेगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर जो बाकी की चेंजेस है वो कहाँ होगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो CO2 और वाटर वेपर और एनर्जी का फॉर्मेशन है, ATP का जो फॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली कहाँ होना है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इफ ऑक्सीजन is present inside a cell. That means in aerobic respiration, first of all, glucose is broken down into pyruvate in the cytoplasmic region of the cell. If further oxygen is present, it transfers into mitochondria and finally gets converted, या finally gets simply broken down into CO2, water vapor and energy. और एनर्जी भी कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP हमें पता है, और कितनी ATPs फॉर्म होती है, 38 ATPs आर प्रोड्यूस्ड इन वन ब्रेकिंग ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकअप में या ब्रेकडाउन में जो है वो ऑल टुगेदर 38 ATPs का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए ये लाइन लिखी थी, सेकेंड लाइन फर्स्ट लाइन में लिखा है, इट टेक्स एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डेफिनेशन थी, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा था, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, तो मोर एनर्जी का मतलब यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, तो 38 ATP मॉलिक्यूल बहुत होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ओके। अच्छा, एनारोबिक में क्या था, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and it produces less energy as compared to the aerobic respiration. The end products are lactic acid or ethanol, carbon dioxide and energy, and it takes place in the muscle cells and yeast. तो पहले इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए एनारोबिक का। तो एनारोबिक में भी मैंने बताया कि ग्लूकोज जो है सेम वे में रिएक्ट करेगा जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है कि वो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करेगा।
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ या हाफ ब्रेक डाउन हुआ इन द साइटोप्लाज्म। एरोबिक में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहा था तो वो कहाँ पे जा रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा था एंड रिलीज एनर्जी। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में अब चूंकि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो अगर वो ह्यूमन सेल है, ठीक, अगर वो ह्यूमन सेल है या एनिमल सेल है, तो वो कहाँ एंटर करेगा, इन द मसल सेल्स। इफ ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है कि वो सब में होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है ऑलमोस्ट, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ ही जगहों पर होता है, कुछ सेल्स में होता है या कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज अगर हमारे सपोज करो हमारी बॉडी में पायरुविक एसिड ऐसी जगह प्रोड्यूस हुआ जहाँ फर्दर कोई ऑक्सीजन नहीं बचा है, तो बजाय माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जाने का वो कहाँ जाएगा, इन द हमारे मसल सेल्स में जाएगा। ठीक, और बेसिकली जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार हम डंबल उठा रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मसल्स की जितने ऑक्सीजन वो सब यूटिलाइज हो जाती है, और जब सारी यूटिलाइज हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे मसल्स में कोई एनर्जी नहीं बचती। ठीक है, बहुत देर तक अगर हम काम कर ले या खड़े हो जाए या दौड़ ले या जंप कर ले या कुछ भी ऐसा स्ट्रेनस काम कर ले, तो क्या होता है, मसल्स में दर्द होता है। तो वाई इज़ दैट मसल पेन, तो वो पेन जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स, एंड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कि पायरुविक एसिड को हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए वो बजाय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाने की क्या बना गया, लैक्टिक एसिड बना गया, और सिर्फ 2 ATP एनर्जी बनाता है, जिससे कि हमारे मसल्स में दर्द होता है, वी फील द पेन। ओके, तो एक ये एग्जांपल हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एक और जगह होता है, एक और ऑर्गेनिजम्स में होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरह का फंगस होता है। इफ़ यू रिमेंबर, ईस्ट इज़ द ओनली यूनिसेल्युलर फंगस, एकमात्र ऐसा यूनिसेल मीन्स एक सेल का बना फंगस है, वो कौन है, ईस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या था, सैकरोमाइसिस। ठीक है, एनीवेज नो नीड ऑफ दैट साइंटिफिक नेम बट यू मस्ट नो। तो ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, इसके अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसको भी ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें भी इसका जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में कन्वर्ट होएगा, इथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। द ग्लूकोज इन द ईस्ट विल बी फर्स्ट ब्रोकन इनटू पायरुविक एसिड, जैसा कि सब में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी चूँकि ऑक्सीजन नहीं है तो वो इथानोल में, ठीक है, कन्वर्ट होगा, विच इज़ एन अल्कोहल। ठीक है, 2 कार्बन अल्कोहल, देन कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक, अच्छा, अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है, इथेनॉल like this yeast are used in this process is also termed as fermentation। ठीक है, तो इथेनॉल से क्या होगा कि, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को इन अदर टर्म्स जो है वो फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में हो रहा है वो बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ द बेकिंग ऑफ द ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के बेक करने में क्या होता है, इफ़ यू ऑब्जर्व द ब्रेड, तो ब्रेड में कई जगह होल्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स एक्चुअली क्यों होते हैं, बिकॉज कि जब ईस्ट के फर्मेंटेशन से ब्रेड को बनाया जाता है। ठीक है, तो जब फर्मेंट करेगा, फर्मेंट मतलब वही एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ईस्ट में या बैक्टीरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो उसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, खमीर उठाना, है ना। जब हम डोसा बनाते हैं
ठीक है, या छोला या भटूरा बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं, ठीक है, या केक या ब्रेड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम या तो ईस्ट डाल देते हैं या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो उससे क्या होता है, इस ईस्ट वाले केस में क्या होगा कि जो इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होगा, इवापोरेट कर जाता है, और उस वजह से जहाँ से वो इवापोरेट करेगा वहाँ पे होल या पोर्स या छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक अलग सा टेस्ट और अलग सा स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इट कॉजेस लीवनिंग ऑफ द ब्रेड। जो ये खमी जो छेद हो रहा है ब्रेड में, उसको हम क्या बोलते हैं, लीवनिंग। ठीक है, लीवनिंग ऑफ द ब्रेड, मतलब कि उसमें से जो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जैसे कि इडली में भी देखा होगा कि उसमें पोर्स हो जाते हैं। जो बैटर हम बनाते हैं, बैटर बना के उसको या तो हम उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं या फिर हम उसको छोड़ देते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए। तो हम छोड़ते किस लिए हैं, इसीलिए कि उसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन हो ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वो जब इथेनॉल एस्केप करता है, इवापोरेट करता है, तो वहाँ पे छेद हो जाता है। इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज़ ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा जितने भी वो हैं लिकर्स हैं, ठीक है, अल्कोहल्स, लिकर्स, तो उनके प्रोडक्शन में भी, चीज़ के फॉर्मेशन में, ठीक है, इनका बहुत एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ होता है। सो यू कैन सी दिस इज़ द कंप्लीट चार्ट of both the aerobic and anaerobic respiration. So glucose in the presence of oxygen in the cytoplasm, it's very important, is converted into pyruvic acid plus some amount of energy. ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन के मतलब ड्यूरेशन में भी होते हैं, बट बहुत मिनिमल होगा। उसके बाद पायरुविक एसिड चेक करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शंस होते हैं कई सारे, वहाँ पर भी कई स्टेप्स में रिएक्शन होते हैं, और फाइनली क्या बनता है, CO2, वाटर एंड 38 ATPs। अगर एब्सेंट है ऑक्सीजन और ये मसल सेल में हो रहा है एनारोबिक, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और ओनली 2 ATPs ऑफ एनर्जी। और अगर वो ईस्ट में हो रहा है फंगस में, तो उसमें क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो दिस इज़ अ कंप्लीट चार्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक। तो एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस हो गया, सबसे पहला कि एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। Then the end products are CO2, water and 38 ATPs, and the end product can be lactic acid, ethanol, CO2 and 2 molecules of energy, ATP. Then aerobic respiration takes place in almost all types of cells, but anaerobic takes place in muscle cells or basically in the microorganisms like yeast and bacteria. ठीक, and the aerobic respiration releases more amount of energy because here 38 ATPs are evolved, but here only 2 molecules of ATP are evolved in case of anaerobic. Okay, so these are some differences between aerobic and anaerobic mode of respiration.